So good morning, all of you. So as we were doing this chapter, Democratic Resurgence, which is the sixth chapter of your new revised syllabus, and the previous name, as I told you, was the Crisis of the Democratic Order. This name has been changed to now Democratic Resurgence, and around seven parts we had completed of this chapter, and the last part I had done yesterday, which was in relation to the controversies regarding emergency, in which I had covered was the emergency necessary. We had put up the questions: was this emergency, imposition of this emergency was necessary? Second question was, what happened during emergency, what all things had happened emergency. Then we had discussed this custodial deaths of few of the people, and we had discussed about detention क्या होता है detention. If we feel that कोई crime करने वाला है, in advance we arrest people and put them into jail. तो इस टाइप की बहुत सारी activities हुई थी under emergency period. So all that we had discussed. Now the topic for the day is lessons of the emergency, and time period I have written 1975 to 1977. So we'll see what were the lessons and what are the lessons we can learn from this period of emergency. So I'm starting it. The emergency at once brought out both the weakness and the strength of Indian democracy. Whenever we study about this particular topic, emergency, which is there in the syllabus, when we completely interpret it properly, all the positive and negative points जब हम इसके दोनों पढ़ते हैं, तो हमें अपने इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की कुछ स्ट्रेंथ भी पता चलती है, प्लस उसकी वीकनेस भी पता चलती है. और when we come to know both the weakness and strength of our this emergency period, this incident, we learn lot of lessons कि हमें आगे किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस टाइप की गलतियां हमें नहीं करनी है. So that is why it's written in the very first line. It is important. Emergency at once brought both the weakness and the strength of India's democracy. Though there are many observers who think that India ceased to be democratic during the emergency. So there are many thinkers, there are critics also. जब भी हम कोई इवेंट पढ़ते हैं तो उसके क्रिटिक्स भी होते हैं, दोज आर अगेंस्ट दैट एक्टिविटी, और उसके सपोर्टर्स भी होते हैं. तो जो सपोर्टर्स होंगे इमरजेंसी के, दे वर सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी, और जो क्रिटिक्स होंगे वो कौन होंगे? एंटी कांग्रेस होंगे या एंटी इंदिरा गांधी होंगे. तो यहाँ पे क्रिटिक्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं. तो जो इसके सपोर्टर्स है या क्रिटिक्स है वो क्या बोल रहे हैं? दो देयर आर मेनी ऑब्जर्वर्स हु थिंक दैट इंडिया सीज्ड टू बी डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी. इंडिया सीज हो गई थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं रह गई थी इंडिया में ड्यूरिंग इमरजेंसी. अब डेमोक्रेसी वर्ड हम यूज करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब तो पता है ना. आज वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक, वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी. यू हैव द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच. यू कैन मूव एनीवेयर, यू कैन डू व्हाटएवर you want within the law. But in this period of emergency we were like slaves, you can say. जैसे ब्रिटिश रूल था, we were not given any freedom, no opportunities, no equality, no participation in the government, no right to vote. इसी तरीके से पीरियड किस कब हो गया था? इमरजेंसी में. तो they are saying कि जब ये टाइम पीरियड था, इस टाइम डेमोक्रेसी क्या हो गई थी हमारी कंट्री में? सीज हो गई थी. ठीक है. It is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. और जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है वो दोबारा से रिज्यूम हुई, रीओपन हुई, रीस्टार्ट हुई कब? आफ्टर 1977. तो इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था? हमारी डेमोक्रेसी क्या हो गई थी? सीज हो गई थी. इसमें क्या है? हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सीज हो जाती हैं. ओके. Thus one lesson of emergency. तो इन चीजों को अगर हम समझे तो जो सबसे पहला लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस event of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. Without democracy, it would be very difficult to maintain peace and decorum in our country like India, where there is so much of diversity, you know. इतनी सारी diversity होने के बाद still we are together because of the constitution. जो provisions, policies have been made, जो सबको equally treat करती हैं, वो सब बहुत आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, पॉलिटिकल थ्योरी में भी, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन एट लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, कैसे मेंटेन है हमारी कंट्री. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फर्स्ट लेसन ऑफ इमरजेंसी दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए टू सर्वाइव विदाउट डेमोक्रेसी, बिकॉज एवरी ग्रुप, एवरी सिटीजन और एवरी सोशल ग्रुप, एवरी कास्ट हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस. सबकी डिफरेंट फेथ्स हैं, बिलीफ्स हैं, तो सबको एक साथ रखना एक बहुत बड़ा काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है. बट अगर डेमोक्रेसी सीज हो जाएगी ऐसे, तो हमारी कंट्री के डिविजन्स फर्दर हो सकते हैं. जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया था, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर अगर इस टाइप की सिचुएशंस
हमारी कंट्री में दोबारा आती है। तो एक लेसन हमें मिलता है कि डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। इफ आवर कंट्री कैन फंक्शन and be an independent nation, it can be only possible when there will be democracy in our country. तो डेमोक्रेसी हैज बीन, इससे हमको समझ आया कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी वी न्यू डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, उसके बाद हमें फ्रीडम मिल गई, पर उसके बाद भी इस तरीके की एक्टिविटीज के बाद अगेन हमें रियलाइज होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो पहले लेसन में डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, ठीक है। तो आई विल राइट हियर, तो पहला हमारा हो जाता है डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। So there will be short points and you can write the long answer if you have these points in mind. If you have these points in mind कि कौन-कौन से lessons थे, then you can further explain them. ठीक है. So let's move to the second lesson we have learned after this event of emergency. Secondly, it brought out some inequalities regarding emergencies provision in the constitution that have been rectified since. अब क्या हुआ? After emergency, we came to know. We used to think everything is correct in the constitution. But with time phase, with new situations, things need to be changed. टाइम के साथ चीजों को बदलना पड़ता है. So when we had this experience of emergency, तब हमें रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमको क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा अंडर इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी हैव लॉट ऑफ पावर्स, जिस पावर्स का उन्होंने क्या किया, मिसयूज भी किया. तो यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करें, जिसकी वजह से जब इमरजेंसी इंपोज हो तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर हमारी कंट्री में ना हो कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से क्या हो जाए, सीज हो जाए. एक डिक्टेटर की तरह एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर कहीं पर एक्ट ना करे. इस वजह से देयर वर रिक्वायर्ड फ्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स सी. So we are still into the second lesson. So now internal emergency. So क्या changes किए गए, क्या नए provisions लाए गए कि जब भी we will impose internal emergency. मैंने क्या कहा था जब 1975 में emergency impose हुई, रीजन क्या दिया गया था उसका, internal disturbance. तो उसी के लिए एक provision बना दिया constitution ने कि internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion. अगर खाली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे आजकल फार्मर्स लॉ चल रहा है, देख रहे हो ना, तो ऐसे लॉ पे हम इमरजेंसी इंपोज रहेगी हमारी कंट्री में, नहीं हो सकती है. अगर पहले का टाइम होता तो शायद इमरजेंसी इंपोज कर देते, पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इमरजेंसी इंपोज इंटरनल मैटर्स में तभी होगी अगर लोग आपस में क्या कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं. देख रहे हैं आर्म्ड रेबेलियन, लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, ब्रूटैलिटीज हो रही हैं, उस केस में ही हम बहुत ज्यादा इस तरीके से वॉयलेंस बढ़ जाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब जाकर के इंटरनल मैटर्स में इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है. तो ये चेंज आया था एक. Armed rebellion and it is necessary that the advice of the president to be proclaimed emergency must be given in the writing by the union cabinet. अब क्या हुआ था इस इमरजेंसी में, क्या होता, इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली 2059 को अनाउंस कर दिया था दैट वी हैव इम्पोज्ड इमरजेंसी, और जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका भी कंसेंट ले लिया था, बट इट वाज नॉट इन द रिटन फॉर्म. तो कोई प्रूफ नहीं है किसी का कि जो हमारी कैबिनेट थी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को दिया था, उन्होंने साइन किया इमरजेंसी के पेपर पे या नहीं किया, ऐसा कोई वर्बल ऑर्डर्स थे. तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया अगर कभी इमरजेंसी इंपोज होती है तो प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो ग्रुप है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, तो जो ये ग्रुप होगा ये रिटन फॉर्म में देगा किसको, प्रेसिडेंट को, तब वो साइन करता है, तब जाकर के इमरजेंसी इंपोज होगी, अदरवाइज नो. तो दीज टू चेंजेस वर मेड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में फॉर इंपोजिंग इमरजेंसी. अगर हम रीजन देते हैं फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस. दो लेसन समझ आ गए. तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो इसमें सेकंड आ जाएगा कि इमरजेंसी इंपोज हो गया आपका आर्म्ड रेबेलियन में, एंड एक तो ये हो गया, एंड सेकंड हम क्या रीजन दे रहे हैं, और राइटिंग रिटन फॉर्म में.
शॉर्ट में लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर। एक इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा हो गया आर्म रेबेलियन, जब ऐसा केस होगा तभी विल इंपोज इमरजेंसी, और दूसरा होगा जो इमरजेंसी इंपोज करेंगे इट शुड बी गिवन इन द रिटन फॉर्म टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेसंस व्हिच वी हैव लर्नड। लेट्स मूव टू द थर्ड लेसन। दो समझ आ गए, सलोनियन। डैट क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, अगर आप आए हो तो ये इररिलेवेंट नहीं है, आपको पीछे का नहीं पता है वो आप पढ़ लेना, बट लेसंस ऑफ इमरजेंसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दो बार थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लेसन व्हिच वी हैव लर्न, द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब सिविल लिबर्टीज क्या हो गई हमारी? लाइक वी हैव बेसिक वैल्यूज ऑफ जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज, राइट टू वोट, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिलीजन, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सब चीजें क्या हो गई थी इमरजेंसी में? सीज हो गई थी बिल्कुल, और एक डिक्टेटर की तरह वर्क कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड जो हमें लेसन समझ में आता है कि हमको इंपॉर्टेंस पता चली किसकी, कुछ बेसिक वैल्यूज की टू लिव अ हेल्दी लाइफ। वो कौन सी, उनको हम क्या बोलते हैं? सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई थी, तो हमें इनकी इंपॉर्टेंस, हमें किसी चीज की भी इंपॉर्टेंस का पता चलती है जब हमें उस चीज से सीज कर दिया जाए। आज आपको फ्रीडम की कमी महसूस नहीं होती, इक्वालिटी का नहीं, लेकिन बट आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होगा वेयर यू विल फील आई हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वल इन द क्लास। मैं क्लास में बच्चों को अलग ट्रीट करूं तो आपको इनइक्वालिटी चीज समझ आने लगेगी, और वो फ्रीडम मिल रही है आपको, क्लास में ही रखा जा रहा है, आपको घर में ही रखा जा रहा है, और फ्रेंड्स आप जाते हो, आपको फ्रीडम का मीनिंग भी समझ आएगा। ये तो एक बहुत बेसिक सी लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड जब इमरजेंसी हुई तब हमें इंपॉर्टेंस पता चली कुछ बेसिक वैल्यूज की, दोज आर सिविल लिबर्टीज। The court too had taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties. फिर यहाँ पर court also came into action, और court ने भी सोचा now we will have to make some provisions, some rules, regulations and policies to protect the civil rights or civil liberties of the citizens during emergency. अगर फ्यूचर में कभी इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी के पीरियड में भी people should have certain liberties. ऐसा ना हो जाए कि उनको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाए, so they should have some civil liberties. तो इसके लिए court also took some steps. That is why it's written the courts to have taken an active role after emergency in protecting the civil liberties of the individuals or protecting the rights of the individuals. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. और जो ये नए रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कोर्ट ने सोचा, ये क्यों सोचा? क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी जुडिशियरी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया और लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाया टू गिव देम देयर बेसिक राइट्स और वी कैन से सिविल लिबर्टीज। मेनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन केम अप आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। और जो ये एक्सपीरियंस था इमरजेंसी का, इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप बने जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ह्यूमन राइट्स, जैसे आपने सुना है, जो हमारी लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। वुमेन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वुमेन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेबर्स के साथ अगर उनको प्रॉपर उनकी राइट्स नहीं मिल रही हैं, उनकी जो बेसिक सिविल लिबर्टीज है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग फॉर द लेबर क्लास। तो ऐसे ही हर किसी के लिए है कुछ ना कुछ, एसोसिएशंस है बहुत सारी। तो ये सब कब बनने लगे एसोसिएशंस और ग्रुप्स? आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी, कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देयर शुड बी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन चीजों को सपोर्ट करें। ठीक है, सो थर्ड हम लिख देते हैं सिविल लिबर्टीज। तो देखने में तो बहुत छोटा है, बट इफ यू विल एक्सप्लेन देम आपका कंप्लीट 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, so these three are major important topics. अब इसके नीचे तो थोड़ा सा जनरल लेसन है, let's see them. However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grabbed with. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of democratic government and the continuous political protest by parties and the groups. See, पहली लाइन में क्या है? However, the critical years of emergency brought many issues. जो ये क्रिटिकल ईयर्स है ऑफ इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77, इसमें कुछ चीजें हमें और अंडरस्टूड हुई हैं। वो क्या है? जो हमारी एक गवर्नमेंट होती है विच इज द रूलिंग पार्टी, और कुछ होती है हमारी अपोजिशन पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसकी वजह से जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है वो फोकस नहीं कर पाती है अपनी बेसिक पॉलिसीज में। हर गवर्नमेंट क्या चाहती है? डेवलपमेंट। जब उनका मैनिफेस्टो आता है, उनके जो एजेंडाज आते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो वो एजेंडाज क्या होते हैं? टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल growth and development. But once they are elected, they are as a ruling party, तो opposition parties के साथ उनका protest,
क्वेश्चनिंग, प्रेशर, अपोजिशन, वो बहुत ज्यादा पूरे साल ऐसा चलता है। तो जो कह सकते हैं जो मेजर फोकस होता है रूलिंग पार्टी का, उनका माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सिटीजन्स, उनका माइंड किस तरफ रहता है, अपोजिशन पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स क्या कह रहे हैं उनको आंसर करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम भी हमें समझ आए ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, उसको रीड कर रहा हूँ फिर से तो आप समझ जाओगे। देखो, हाउएवर द क्रिटिकल ईयर्स बोल रहे हैं, इमरजेंसी के जो ईयर्स थे, ब्रॉट मैनी इश्यूज दैट हैव बीन एडिक्वेटली ग्रैप्ड विद, कुछ हमें नए इश्यूज समझ आए हैं। कौन सा पहला, वी हैव नोटेड इन दिस चैप्टर दैट देयर इज अ टेंशन बिटवीन रूटीन फंक्शनिंग, जो डेली फंक्शनिंग है हमारी गवर्नमेंट की, उसमें एक टेंशन रहता है बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड द कंटिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, और जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते रहते हैं अपोजिशन पार्टी से एंड ग्रुप से, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू। तो एक क्वेश्चन आया, ये लेसन नहीं है बट स्टिल लेसन के अंडर ही आएगा कि हम कैसे एक परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और अपोजिशन पार्टीज, और जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं इनके बीच में, हाउ कैन वी मेक अ परफेक्ट बैलेंस जिसके थ्रू गवर्नमेंट अलॉन्ग विद क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग विद अपोजिशन पार्टीज फोकस कर सके ऑन द मेजर एंड इंपॉर्टेंट एजेंडाज ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पीपल। शुड द सिटीजन शुड हैव फुल फ्रीडम टू एंगेज इन प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए, क्या सिटीजन को पूरी राइट और फ्रीडम होनी चाहिए कि वो प्रोटेस्ट एक्टिविटीज करता रहे? शुड दे हैव नो सच राइट, या बिल्कुल भी सिटीजन को राइट नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट करने की? व्हाट आर द लिमिट्स, और अगर परमिशन है प्रोटेस्ट करने की तो व्हाट शुड बी द लिमिट टू प्रोटेस्ट? ऐसे तो साल भर, जैसे अभी फार्म लॉस चल रहे हैं फार्मर्स का, अगर पूरे साल हमारी कंट्री में इस टाइप की सिचुएशन रहे, आज फार्मर्स है, कल डॉक्टर्स आ जाए, टीचर्स आ जाए, अलग अलग प्रोफेशन कास्ट के लोग आ जाए, फीमेल्स आ जाए, वुमेन्स एम्पावरमेंट, अगर इट विल मूव कीप मूविंग ऑन लाइक दिस थ्रू आउट देयर, विल आवर कंट्री और वी विल बी एबल टू ग्रो? नो। जो हमारी गवर्नमेंट है, कभी वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है? नहीं, क्योंकि अभी देखिए जैसे गवर्नमेंट का फोकस कहाँ होगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है, हरियाणा बॉर्डर पे क्या चल रहा है, डेली दे आर फेसिंग द प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही है, तो गवर्नमेंट का जो फोकस होता है डेविएट हो जाता है, प्लस इकोनॉमी भी बहुत वेस्ट होती है। तो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, ठीक है। सेकेंडली, सो ऑल दिस यू कैन राइट इन द दिस ऑल्सो लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। ये तो करेक्ट लेसन्स हमें पता चले, कुछ क्वेश्चंस भी रखे आपके सामने, कुछ सिचुएशंस भी हमारे सामने आई है इमरजेंसी में। सेकेंडली क्या है, द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रूल टू प्लेस थ्रू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी क्या हो रहा है, सेकेंडली जो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, जो इंप्लीमेंटेशन हुआ चीजों का, रूल्स रेगुलेशन में इमरजेंसी में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो किसके थ्रू हुआ? इंदिरा गांधी या उनके मिनिस्टर्स तो नहीं आके लोग मार रहे थे ना, तो कौन कर रहा था इंप्लीमेंट? पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हो गई चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया किसी पर्टिकुलर जगह का। These institutions could not function independently। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो जो ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन था, they were not able to work independently। अगर उनको कोई चीज करेक्ट लगती थी अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो उसको नहीं कर रहे थे, they were following the orders and rules given by the prime minister, क्योंकि वो उनके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं कर पा रहे थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। दे वर टर्न इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो एक किसकी तरह काम कर रहे थे? पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो इंस्ट्रूमेंट्स किसके बन गए थे? ऑफ कांग्रेस पार्टी, ऑफ इंदिरा गांधी, एक ऐसे काम कर रहे थे, ऑफ द रूलिंग पार्टी। एंड अकॉर्डिंग टू शाह कमीशन, शाह कमीशन एक ऐसी कमीशन है जो 1977 के बाद जनता पार्टी ने अपॉइंट की थी, ठीक है। जब इमरजेंसी खत्म हो गई, एक कमीशन बनाई गई, वो कमीशन का काम क्या था कि जो 75 से 77 तक जो चीजें हुई हैं, गवर्नमेंट ने कैसे मिसयूज किया अपने पावर्स का, और क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, फीमेल्स के साथ क्या एक्टिविटीज हुई है, मेल्स को क्या प्रॉब्लम हुई, लेबर क्लास को क्या प्रॉब्लम हुई, कास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, प्रेस को सीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, ठीक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपोजिशन पार्टी के उनको डिटेन कर दिया जेल में। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमीशन बनाई थी, उसका नाम क्या था? शाह कमीशन। तो शाह कमीशन ने यहाँ पर बताया है, देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस बिकेम वल्नरेबल टू द पॉलिटिकल प्रेशर्स। इतना पॉलिटिकल प्रेशर था तो पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दे वर अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर। दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी, बट आज हम देखेंगे स्टिल आर पुलिस, आर एडमिनिस्ट्रेशन आर स्टिल अंडर द प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स। एज यू कैन सी, यू हैव सीन मेनी मूवीज ना, पॉलिटिकल लीडर्स का कितना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। बॉलीवुड मूवीज में भी, हम पुरानी मूवी 19s की भी देखते हो आप, उसमें क्या दिखाते हैं, कोई नेता बन गया तो कैसे पुलिस वालों से कैसे बात करता है, पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी में होते हैं,
वो किसी का भी ट्रांसफर कर देता है, कोई अगर पुलिस वाला कुछ भी उसके अगेंस्ट जो भी आते हैं, लेकिन ट्रांसफर दे उन पे कुछ चार्जेस लगा देते हैं, एलिगेशंस लगा के उनको जॉब से ही रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से ये चीजें उठाई गई होती हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे इमरजेंसी में जो चीजें शुरू हुई थी कि पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में काम कर रहा था किसके, पॉलिटिक्स के, पॉलिटिशियंस के, वो चीज आज तक कंटिन्यू हो रही है अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे, ठीक है। तो दिस वर ऑल द लेसन्स एंड थिंग्स वी हैव लर्न अंडर दिस एपिसोड ऑफ इमरजेंसी, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो इससे हमें कुछ ये चैप्टर, कुछ ये 3 तो एग्जैक्ट लेसन्स थे, बाकी चीजें हमने एक्सपीरियंस में देखी हैं क्या क्या हो रहा था। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी पीरियड। So now after the episode of end of emergency from 1975 till 1977, now we have the new topic, that is politics after emergency. So after this period of emergency where all the democratic character of our country was seized and it was like a dictatorship, now we'll have the other topic, politics. What was the type of politics, political system after independence, after emergency period, और इस emergency का क्या impact पड़ा on the politics, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, सो दिस इज ऑन पेज नंबर 118, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी पीरियड। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वाज लर्नड एज सून एज इमरजेंसी वाज ओवर। बट अगर हम लेसन्स, इससे पहले टॉपिक पढ़ रहे थे लेसन्स, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन और लास्ट लेसन हमें जो इमरजेंसी का मिलता है वो अब हम पढ़ेंगे, was over and the लोकसभा इलेक्शंस वर अनाउंस्ड। एक इसको भी हम लेसन की तरह बोलेंगे। इमरजेंसी पीरियड खत्म हो गया था हमारा और 1977 में लास्ट में क्या हो गया था, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, अब क्या होंगे लोकसभा इलेक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होने हैं, फ्रेश इलेक्शंस। द 1977 इलेक्शन टर्न्ड इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। जो 1977 का इलेक्शन था उसमें किसकी वजह से जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा इमरजेंसी का बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो भी रिजल्ट्स होंगे देखते हैं। एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वाज फेल्ट द मोस्ट स्ट्रांगली। तो पहले ही अज्यूम कर लिया था जो इस रिजल्ट का आउटकम होने वाला है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है अगर हम कांग्रेस के पहले के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा और सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट था नॉर्थ इंडिया में वो बहुत ज्यादा था। अब पूरी कंट्री में अगर इफ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी पूरी कंट्री के लिए एक जैसा नहीं था। साउथ में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था, पर नॉर्थ में अगर हम बात करें बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, बिहार, तो इन चीजों की अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्थ वाले पार्ट में जो अपर पार्ट होता है हमारे इंडिया के मैप में, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इमरजेंसी का, ठीक है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट था। इसलिए हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है 1977 का। 1977 इलेक्शन टर्न इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी, at least in North India where the impact of the emergency was felt most strongly. The opposition fought the elections on the slogan of Save Democracy. Now जो opposition parties थी in against to Congress, जो इस लोकसभा इलेक्शन उसमें कंटेस्ट करने वाली थी इलेक्शन, उनका जो एजेंडा था, स्लोगन था, जैसे हमने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा था, इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, तो अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा, इंदिरा को हटाओ। जब होता ना, जैसे अभी नरेंद्र मोदी का क्या था, सबका साथ सबका विकास, इस टाइम पे हर इलेक्शन में कोई ना कोई एजेंडा सामने आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या आ गया, जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने क्या बोला, सेव डेमोक्रेसी। अगर उन्हें कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने क्या एजेंडा दिया अपना, क्या स्लोगन दिया, सेव डेमोक्रेसी। असल में उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा कि सेव डेमोक्रेसी, अपोजिशन पार्टी ने खुशी क्यों बोला होगा सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी लगी थी तो हमारी जो डेमोक्रेसी थी क्या हो गई थी, सीज हो गई थी, हमें कोई राइट्स नहीं थी, कुछ भी फंडामेंटल राइट्स नहीं थी। तो उस ऐसी सिचुएशन आगे ना हो कि कांग्रेस के अंडर इमरजेंसी आई थी, तो उन्होंने कहा हम सेव करेंगे डेमोक्रेसी को अगर हम इलेक्ट होते हैं, वी कम टू द पावर। सो दिस स्लोगन वाज गिवन बाय द अपोजिशन पार्टीज, सेव डेमोक्रेसी। द पीपल्स वर्डिक्ट वाज डिसाइसिवली अगेंस्ट इमरजेंसी। अगर लोगों का पूछा जाए तो लोग वर अगेंस्ट दिस पीरियड ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी के अगेंस्ट थे इसका मतलब डायरेक्टली किसके अगेंस्ट थे, कांग्रेस। अगर कांग्रेस के अगेंस्ट थे तो इट मींस किस लीडर के अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे। द लेसन वाज क्लियर, हैज बीन reiterated in many state level elections thereafter. Government that are perceived to be anti-democratic are severely punished. तो एक लेसन जो हमें और सीखने को मिला, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, सीपीआई हो,
अगर वो एंटी डेमोक्रेटिक होगी, इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी, तो पीपल विल नेवर वोट देम और वो कभी पावर में नहीं आ पाएंगे। दैट इज व्हाई इट्स रिटन गवर्नमेंट दैट आर परसीव्ड टू बी एंटी डेमोक्रेटिक। कोई भी गवर्नमेंट अगर परसीव होती है, उनके आइडियाज से, पॉलिसीज से लगता है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक है, दे विल बी सिवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। जाके हम मार तो नहीं सकते, उन्हें पनिश कैसे कर सकते हैं? विल नॉट वोट फॉर देम, कभी वो पावर में नहीं आएंगे। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेनिंग पावर। अब वो पावर में नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर पनिशिंग देम। कोई भी गवर्नमेंट अगर एंटी डेमोक्रेटिक होगी तो उसको हम पनिश करेंगे इस तरीके से। इन दिस सेंस द एक्सपीरियंस ऑफ 1970, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक्सपीरियंस था इमरजेंसी का 1975 से 77 एंडेड अप स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इमरजेंसी तो खत्म हुई, बट एक जो फाउंडेशन थी हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की, उसको क्या कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स वी वर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ फंक्शनिंग इन आवर कंट्री, बट उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज कभी नहीं हुई थी। जब इमरजेंसी इंपोज की गई तब हमें रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू है। तो जब डेमोक्रेसी ये इमरजेंसी एंड होती है, तो एंड होते होते क्या करती है, डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन हमारी कंट्री की, उसको क्या बना दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग कैसे बना दिया? बिकॉज वोटर्स ने क्लियर किया कि जो भी एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी, उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट पनिश करेंगे थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो इसका एक ये लेसन आ जाता है, लेसन में आप ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली पढ़ रहे हैं हम लोकसभा इलेक्शन 1977। अभी तो ये लेसन और जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था, ये सभी पॉलिटिक्स थी, क्या हुआ। अब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं 1977 में फाइनली। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जनवरी 1977 में आफ्टर 18 मंथ ऑफ इमरजेंसी, आ सकता है 1 मार्क्स में कितने मंथ की इमरजेंसी थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 18 मंथ ऑफ इमरजेंसी, टाइम पीरियड तो पता है आपको 1975 से 77, बट 18 मंथ्स भी पता होने चाहिए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन। फाइनली अब गवर्नमेंट ने सोचा वी शुड हैव इलेक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, क्राइटेरिया है 5-6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑलरेडी इमरजेंसी की वजह से 1 साल ज्यादा हो गया, 6 इयर्स हो गए थे, तो अब तो इलेक्शंस होने ही थे। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स वर रिलीज फ्रॉम जेल। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लीडर्स, एक्टिविस्ट और जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो न्यूज़पेपर और प्रेस में वर्क करते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे, जो गवर्नमेंट को लगता था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको कहाँ डाला हुआ था, डिटेन किया हुआ था, कहाँ, जेल में। तो सबसे पहले जब अनाउंस हुए फ्रेश इलेक्शंस, उन लोगों को रिलीज किया गया। ठीक है, रिलीज फ्रॉम इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977, तो पता होना चाहिए फाइनली जब इलेक्शन हुए कब हुए, मार्च 1977। दिस लेफ्ट द ऑपोजिशन विद लिटिल टाइम, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक वेरी रैपिडली। अब क्या हो रहा है, जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनको जैसे ही पता चला कि मार्च में ही क्या है, इलेक्शंस है, तो उनके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम था। किसके पास? अपोजिशन पार्टीज का, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं थी कांग्रेस के सामने अभी भी। बट डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी के बाद बहुत चीजें बदल रही थी हमारी कंट्री में, बहुत फास्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, द मेजर अपोजिशन पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर। अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात की जाए, हमने कोalition के बारे में बात की है, और भी हमने जो बातें की थी पहले, ऑलरेडी बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ आना चाहती थी अगेंस्ट कांग्रेस। तो अब अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको सबको, कैसे एक साथ आने की, किसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। इस इलेक्शन में इन सबने क्या सोचा, अपोजिशन पार्टीज ने, और तो उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, डिफरेंसेस थे उनके बीच में, बट स्टिल दे ऑल वर अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी। उनको कैसे भी पावर से हटाना था कांग्रेस को। सो ये सब एक साथ आए एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। इन्होंने एक पार्टी बनाई मिलकर के, नोन एज द जनता पार्टी। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के बाद जो पार्टी बनी, कोई इंडिविजुअल आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं थी। क्या था ये, कोलिशन बोल सकते हो, जिसमें सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ आई, उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या रखा, जनता पार्टी, जनता की पार्टी। समझ लो नाम की बड़ा है, जनता की पार्टी। और इनका स्लोगन आपको पता है, सेव डेमोक्रेसी। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इस इलेक्शन में लीड करने के लिए जो लीडर होगा वो किसको इलेक्ट किया गया, जयप्रकाश नारायण। Some leaders of the Congress who were opposed to emergency. Within the Congress party, there were few leaders who was against this emergency. जो इमरजेंसी हुई थी, कांग्रेस के अंदर से सबने सपोर्ट नहीं किया था। कुछ लीडर्स जिन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया था, they joined the new party. उन्होंने नई पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, some other Congress leaders also came out and formed a separate party. कुछ और लीडर्स भी थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी बना ली। उस पार्टी का लीडर कौन बना, जगजीवन राम। ये पता होना चाहिए बेटा आपको। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है।
जगजीवन राम। तो कांग्रेस पार्टी के ही अंदर से कुछ लोग निकले, उन्होंने न्यू पार्टी ज्वाइन कर ली, बट वो न्यू पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ है। उसी कांग्रेस के अंदर से कुछ और लीडर्स निकले, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उसका पार्टी का लीडर कौन बना? जगजीवन राम। दिस पार्टी नेम्ड है, और उन्होंने इस पार्टी का नाम क्या रखा? जो कांग्रेस पार्टी के लोग बाहर आए, उनका जो लीडर था जगजीवन राम, इन्होंने नई पार्टी का नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि एक कांग्रेस क्या थी? अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इमरजेंसी इंपोज कर दी। तो इन्होंने बोला हम वो कांग्रेस है जो सपोर्ट कर रही है किसको? डेमोक्रेसी। सो द नेम ऑफ द पार्टी इज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड द लीडर इज जगजीवन राम। दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज विद जनता पार्टी। पहले ही इंडिविजुअल पार्टी बनी, पर जैसे जैसे इलेक्शन आने वाला था, ये किसके साथ मर्ज हो गए? जनता पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी बहुत सारी पार्टी से मिलकर के बनी थी, ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी पहले सेपरेट, फिर ये भी मर्ज हो गए किसमें? जनता पार्टी में, अगेंस्ट कांग्रेस। सो आई थिंक टुडे विल कीप इतना ही, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डू नॉट मिस द क्लास, ओके, बिकॉज वी हैव जस्ट 5 minutes लेफ्ट। Bye, baby.